Good evening, everyone. Institutional Innovation Council, Sri Guru Nanak Dev Education Trust, welcome all of you and our inviting speaker, Mr. Saruk. This event is organized in the association with RD Engineering College, Uttar Pradesh. I would like to invite Dr. Pankaj Singh from RD Engineering College to brief about our speaker, Mr. Saruk. Please, sir. Pankaj, sir. Yes, sir. Yes. Uh, Good evening, all of you, especially for Rishi and Mr. Saruk. Good evening, sir. Most welcome in our this talk. I think students and faculty will be benefited for you. Uh, I am just before starting the session, I am just introducing the Mr. Saruk. Myself, Dr. Pankaj Singh, Dean Research, RD Engineering College, and President of IIC, RD Engineering College. As we know, startup and innovations are the backbone for the country progress. To boost the enterprise entrepreneurship culture, we have invited Mr. Saruk, founder Lucid Education Bhopal. Saruk is an energetic and versatile professional, highly experienced in early stage companies with experience across different verticals ranging from real estate, construction material, pharmaceuticals, information security, food and beverage, e-commerce, manufacturing, tourism and hospitality, NGOs, education and music. My God, Saruk, how much area you have covered, bhai? Huh? He has been featured 35 plus times in all leading media house like Livemin, HT, DB, Patrika, Nauduniya, Haribhumi, etc. for his work recently being featured on the cover page of the First Move, Central India's first startup business magazine. First Move is the first startup business magazine where Saruk is going to introduce the sir. He joined his family business as a director in Rose Builders and Promoters, Bhopal, where he used to head all responsibilities in all around the organization with one of the company's notable partnership with People's High Rise project values at rupees 700 crore. Previously, Saruk served as a demand manager in Oyo Rooms, Indore, looking after the travel agent channel across India. He also completed his general management program from IIM Bangalore, a very prestigious organization as you know all, and was recently a part of Skirt Automation and Infosec SaaS startup. Not just being a business oriented person, Saruk has also proven his leadership skill in developing the Dreambox Foundation, which is an NGO, with a few other core teammates and scaled the organization to 20 plus full time members and 250 volunteers, expanding an operation in three different cities. Now the volunteer will be growing and growing after your session, Saruk. I am promised the RD Engineering College students and other are also will be in your team. In his part time, he loves to play his guitar and all was associated with the five Vices band that performed at 20 plus venues and winning several local and national level band competitions. Along with his bandmates, he composed the theme song for one of the top civil construction company in India, Gammon India. Gammon India is the very top company or civil engineer students are also in this seminar. Beta, Gammon India is very big company if you construct about the civil engineer. Saruk also like to travel and explore new places where riding being one of his passion. He was selected as the activities officer for Harley Davidson Bhopal chapter and collaborated with a lot of different firms to increase group engagement without further delay, let's welcome our guest speaker. Over to you, Saruk sir. Please, Saruk sir. Thank you, Pawan sir, for this amazing introduction. Thank you, Deep sir and Shigai sir. So, as मेरा जो एक्सपीरियंस है तो मैं उसके हिसाब से चीज़ों को ब्लेंड करना चाहूँगा आज एंड जो भी अब मैं आगे बात करूँगा टू whoever listening to this, I want कि कुछ ना कुछ आप सब सीखते जाओ इन टर्म्स ऑफ जो मैंने सीखा है हो सकता है कुछ आपके भी कभी लाइफ में काम आए because I was able to work in 10 industries in the past 8 years and I've transacted with a lot of people. So इंडस्ट्री की डिमांड क्या होती है, खुद चाहता कैसा है. मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ एंड एक मैनेजमेंट स्टूडेंट का ब्लेंड है मेरा
एक्सपीरियंस का, तो आई वांट कि आप लोग थोड़ा बहुत कुछ जो भी समझें इस पर्सपेक्टिव से समझिएगा इस टॉक को, कि कोई ये स्टूडेंट ये ना देखे कि मेरे हिसाब से कुछ नहीं बता रहे, या कोई फैकल्टी ना देखे मेरे हिसाब से, या कोई इंडस्ट्री, इट शुड बी अ जनरलिस्टिक टॉक। तो ओवरऑल इंडस्ट्री कैसे मूव कर रही है, ओवरऑल क्या चल रहा है उसको वैसे देखो without having any perception, and then after the talk you'll be able to have some kind of perspective over things, right? And we'll take the talk into 3 sections. एक तो हम स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे, एक हम बात करेंगे ओवरऑल जनरल क्या चीज़ें चल रही हैं, दूसरी बात करेंगे कि इनोवेशन का क्या पॉइंट है और स्टार्टअप्स में कैसे बेनिफिट इसका मिलता है, तो स्पेशली टू द स्टूडेंट्स। सो बिफोर आई जंप इनटू दिस second to second and third section, let me start with the first section, which is स्टार्टअप्स है क्या, इसका ओरिजिन क्या है। ये वर्ड बहुत सुनने को मिल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खूब सारी स्कीम्स निकालती जा रही है, उसके बाद हम लोग क्रेजी हो रहे हैं, आजकल के स्टूडेंट्स बोल रहे हैं स्टार्टअप्स में काम करना है, हम पढ़ते हैं कि आईआईटीज आईआईएम्स में तो करोड़ों का पैकेज लग गया, स्टूडेंट बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि स्टार्टअप में काम, बट स्टार्टअप्स है क्या, क्या ये वर्ड अभी नया आया है या ये वर्ड काफ़ी पुराना है, ये स्टार्टअप्स को हम क्या कैसे परसीव करते हैं। सो आई वांट टू टेल अबाउट, आई होप मेरे को मेरी आवाज़ सबको आ रही है, राइट? एंड आई वांट यस यस एब्सोल्युटली ग्रेट, एंड आई वांट कि थोड़ा एंगेजिंग सेशन, किसी को थोड़ा स्पीड स्लो करनी हो तो बता सकता है, किसी को कुछ समझ ना आ रहा हो तो प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख सकता है, हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन गाइस। सो Shahrukh, first of all, you are a civil engineer. That's why my civil students are very much interested to see you and look you. थैंक यू सर। नहीं सर, डेफिनेटली सिविल सारे ब्रांचेस को बेनिफिट मिले, बट सिविल का यार विल गिव अ प्रिविलेज टू देम एज वेल। सो स्टार्टअप्स पे समझते हैं पहले, बिकॉज सिविल इज़ अ वेरी कन्वेंशनल काइंड ऑफ इंडस्ट्री, सो आई विल आल्सो टॉक अबाउट सिविल बिकॉज सो स्टार्टअप्स का क्या रहा है कि एक एज सिविलाइजेशन चलता है, फ्यूडलिज्म होता था, कैपिटलिज्म होता था, इंडस्ट्रियल एज आया, हमने रेवोल्यूशन सुने, वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सब जो आए हैं ना, इसमें क्या होता था एक टाइम पे राजा महाराजाओं के टाइम पे ना, सिर्फ इंसान की लाइफ को बचाने के राजा बोलता था आप मुझे खाना उगा के दो और मैं आपको जिंदा रखूँ, दैट वाज फ्यूडलिज्म, वो 1300 तक चलता है। तो लोग 3-4 साल 5 साल तक बड़े बोर हो गए कि यार हम खाना उगाते हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है और राजा हमें सिर्फ जिंदा रखते हैं, मतलब इसमें क्या है, लाइफ में क्या है, मतलब अगर हम बेटर क्रॉप्स उगाएं तो हमें क्या बेनिफिट। तो लोग इससे बचने के लिए दे स्टार्टेड डेवलपिंग मार्केट्स, जहाँ से कैपिटलिज्म आना स्टार्ट हुआ। कैपिटलिज्म वाज द यूज ऑफ करेंसी। अब करेंसी हर राजा की अलग हुआ करती है, अपने राजा का एक खुद का शक्ल छपा होता था, बोलता था चलो अब आप मेरे साथ। 1300 से 1500 के बीच में कैपिटलिज्म आना स्टार्ट हुआ। तो रियल स्टार्टअप की दुनिया वहाँ से शुरू हुई, इतनी पुरानी है, 500-700 ईयर्स बैक जाओगे तो वहाँ से जब लोगों ने अपनी खुद की क्रॉप को अच्छे से ब्यूटीफाई करा, पैकेजिंग बेटर करी, अपने आर्म्स बेचते थे तो तलवारें बेचते, भाले बेचते, शील्ड बेचते, तो उसको गोल्डन करते, रोप्स बेचते राजाओं के, घोड़े होते थे तो घोड़ों की नाल सुंदर बनाने लग गए, घोड़ों के ऊपर जो पहनाते हैं कपड़े वो सुंदर करने लग गए। तो वहाँ से एक कल्चर आया कि हम इनोवेट करें। वो इनोवेशन टेक्नोलॉजी का नहीं हुआ करता, वो इनोवेशन हुआ करता था नॉर्मल कन्वेंशनल चीज़ से। बढ़ते 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 आगे जब मार्केट्स बड़े होते गए, 1800 के आसपास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तब दुनिया में पॉपुलेशन एकदम ग्रो करने लग गई, बहुत कम होना स्टार्ट हो गई। तब वहाँ पे लोगों ने सोचा कि हम लोग की आमदनी क्या है, क्योंकि जब पैसे से हम कुछ खरीद सकते तो ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं। तो कैपिटल मार्केट में लोगों ने इंडस्ट्री सेटअप करना स्टार्ट करी, स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, माइनिंग होना स्टार्ट हुई, ऑयल इंडस्ट्री, वहाँ से एविएशन इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, वहाँ से कंस्ट्रक्शन मटीरियल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये सब का बॉर्न हुआ। तो ये इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट का मैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ITCF, ये सारे डिपार्टमेंट्स का असली में इस्तेमाल उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आना स्टार्ट हुआ जब डिमांड इसकी बढ़ी। बट तब कंप्यूटर साइंस और IT वालों की डिमांड नहीं थी। गोइंग फॉरवर्ड असली स्टार्टअप का जो टर्निंग हिस्ट्री का इवेंट था वो था 1990s के टाइम पे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक जैसी कंपनी आने लगी। तब इंटरनेट आया, इंटरनेट तब हुआ नहीं था। एप्पल जब कंपनी आई थी तब इंटरनेट से बहुत पहले। माय वॉइस इज माय वॉइस क्लियर टू एवरीबॉडी? आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है गुरप्रीत, आप देखो हमें तो क्लियर आ रही है। और किसी को आवाज़ है का, आवाज़ का इशू किसी को आ रहा है? आई थिंक अर्पिता जी भी शायद कुछ पूछना चाह रही हैं, उनका उन्हें हैंड रेज किया हुआ है।
अर्पिता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो बीच में? आई थिंक इट्स इंटरेक्टिव सेशन एज वेल, तो आप बीच में आई थिंक पूछ सकते हैं अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो। आई थिंक अर्पिता ने पहले से हैंड कर, ठीक है, सो आई कंटिन्यू। सो 1990s के टाइम पे ये बड़ी बड़ी कंपनीज आना चालू हुई, जो आज बड़ी हैं तब तो कुछ नहीं, गराज चीज हुआ। तब टेक्नोलॉजी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था जब वर्ल्ड वाइड पे WWW आता था। अब वो गोइंग फॉरवर्ड टू 2007 इंडिया में इंटरनेट 2000 के आसपास आना स्टार्ट हुआ था, जब इंडिया ग्लोबलाइज होना स्टार्ट हुआ। तब इंटरनेट कंपनीज 2007 में सबसे बड़ी कंपनी को हम जानते हैं फ्लिपकार्ट, दैट केम इनटू पिक्चर। सो 1400-1300 सदी से लेके आज तक 2007 तक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसमें इंटरनेट हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैन। इंटरनेट के आने की वजह से क्या हुआ, लोगों को ये मालूम पड़ा कि जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक मशीनरी लगाएं तो हमें हज़ारों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बट इंटरनेट आने की वजह से www के अंदर लोग एक डोमेन खरीद के सिर्फ एक सर्वर का अपलोड डाउनलोड का ऑप्शन लेके हम 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये में एक कंपनी बना सकते हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंट, इंटरनेट कंपनी स्टार्ट हुई, ऑनलाइन म्यूजिक आना स्टार्ट हुआ, ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई, ऑनलाइन डेटा शेयरिंग, यूट्यूब तक चैनल ऐसी कोई चीज़ आई, इंस्टाग्राम तो बहुत बाद में आया, बट फेसबुक आना स्टार्ट हुआ। दिस वॉज द इनोवेशन दैट हैपेंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। स्टार्टअप पुराना नहीं है, स्टार्टअप कितने साल से हो रहा है, बट टेक्नोलॉजी से हम जानते हैं। आज हम एज अ स्टूडेंट जो आप लोग जो सेशन में अभी अटेंड करते हैं, जो ये स्टार्टअप वर्ड कान में सुन रहे हैं ना, वो स्टार्टअप समझते हैं कि टेक्नोलॉजी से होने वाली कंपनी स्टार्टअप होती है। ऐसा नहीं है, विदाउट टेक्नोलॉजी भी स्टार्टअप्स होते हैं, लेकिन हम उनको अभी नहीं समझते। हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी है। अब हम चलो इसको ले लेते हैं कि टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप होता है। अब हम ये बात करते हैं कि इस टेक्नोलॉजिकल में एडवांसमेंट में क्यों एक स्टार्टअप और एक बिजनेस को अलग रखा गया। आज अगर टाटा को ले, हम रिलायंस को ले, या हम लोग अडानी एंटरप्राइजेस को ले, इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ स्टार्टअप? वाई अ स्टार्टअप लेट्स से जोमेटो, स्विगी, ओला, ऊबर, ओयो, ये क्यों अलग है अडानी या रिलायंस? द बिगेस्ट रीजन आई टेल यू व्हाई दीज आर टू डिफरेंट। एक बड़ी कन्वेंशनल कंपनी यूजुअली ग्रोज 5 to 10% a year, that is the maximum। इंडिया की जीडीपी है वो 5-7% से बढ़ सकती है, साल में भी 9% का प्लान कर रहे हैं इंडिया की जीडीपी जाएगी। सो एक स्टार्टअप नॉर्मली 7% पर वीक ग्रो करता है, एक बड़ी कंपनी 7% पर ईयर ग्रो करती है। जो ग्रोथ का मैट्रिक्स है वो बहुत डिफरेंट है। लेकिन ये अडानी अंबानी की कंपनियाँ, हम कोई भी रतन टाटा की बनाई कंपनी, हम इनकी जब बात करते हैं, ये भी एक टाइम पे स्टार्टअप हुआ करते थे जब ये भी खुद 7% ग्रो करते थे हफ्ते टू हफ्ते। बट जब एक एंटरप्राइज बड़ा होता चला जाता है, उसमें लोग बढ़ जाते हैं, बिजनेसेस बढ़ जाते हैं, डिसीजन मेकिंग डेफिनेटली स्लो हो जाता है, क्योंकि एक जो ओनर होता है उसके पास डिसीजन लेने का टाइम नहीं होता। नीचे से डिसीजन होते 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 ऊपर आता है, वापस नीचे जाता है। इसलिए एंटरप्राइज और स्टार्टअप में डिफरेंस है। बट एक एंटरप्राइज बड़ा भी स्टार्टअप हुआ करता है, ये आप दिमाग में मुझे याद है, राइट? अभी तक किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी मिस हुआ पॉइंट की, तो समझ नहीं आया, प्लीज पूछ सकते हैं। सो हम आगे मूव करते हैं। सो इसमें क्या है कि अब मैं बात करना चाहता हूँ कि एक स्टार्टअप में इनोवेशन की क्या कहानी है। अब एक बड़ी एंटरप्राइज और एक स्टार्टअप में जोड़ने का क्या सेंस है? अब स्टार्टअप में होता क्या है, एक छोटी मेरे को डाउट है शाहरुख, मेरे को एक डाउट। जी जी भावेश सर, प्लीज। मेरे को ये डाउट है, यू डिड योर बीटेक एंड MBA फ्रॉम IIMs, so you if you planning for go for any great job and all this easily you will get, why you switching startup and other, what is the main reason? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन सर। सर ऐसा क्या अक्सर क्या होता है कि जब हम खुद पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, हमें लगता है कि यार हम आज गली क्रिकेट खेलने में अच्छे हो गए, हमारा बैट बढ़िया चला रहे हैं, तो हम क्यों ना बड़ा ग्राउंड लें, क्यों ना हम अब रणजी ट्रॉफी खेलें, क्यों ना हम इंडिया टीम के लिए खेलें। दैट बिग विजन। अब मेरे साथ क्या है, व्हेन आई स्टार्टेड टू वर्क इन कंपनीज, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा कर नहीं पा रहा, मेरे पास बहुत छोटा सा एक स्पेस है काम करने का। ओयो में जब मैं काम कर रहा था सर, तो मुझे लग रहा था कि मैं इससे ज़्यादा कैसे दूँ, मैं ऐसा क्या कर दूँ कि मैं मेरे डिमांड में, जब मैं मेरा टारगेट है कि मेरे को 2 लाख रुपये पर डे बिजनेस लाना है, जब मैं 20 लाख ला सकता हूँ तो मैं 2 लाख से क्यों रुका? द रीजन वॉज दैट कि आई केम इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, आई जंप बैक इनटू एंड आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर कि आई वांट टू डू मोर, आई वांट टू impact more, I want to create more, I want to make a new system and